हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 11 सुनीता इन स्पेस। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 11 है सुनीता इन स्पेस। ठीक है, पहले हम थोड़ा समरी देखेंगे। ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक मॉडल है अर्थ का। सुनीता टोल्ड द चिल्ड्रन अबाउट हर एक्सपीरियंसेस इन दिस स्पेस। सुनीता ने बच्चों को बताया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में जो उन्होंने स्पेस में बिताया था। ठीक है। द अर्थ हैज़ सम पावर बाय विच इट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ। दिस पावर इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, इस पावर को ग्रेविटी कहते हैं। स्पेस एंड मून डू नॉट हैव दैट पावर। The earth looks curved from space. One can only see land and water. Division of countries has been done by man. The earth looks very beautiful from space. Space से अर्थ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। The night sky has twinkling stars, the moon and shooting stars. The moon seems to change its shape every night. Some festivals like Eid are related to the moon. कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो कि मून से रिलेटेड होता है, जैसे कि ईद। सुनीता told the children that if you want something but you get something else, do not give up. Do your best and things will work out. Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. ठीक है, सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर है। आंसर दिस क्वेश्चंस। हु इज सुनीता विलियम्स? व्हाट वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ सी मेड? सुनीता विलियम कौन है और उन्होंने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो सुनीता विलियम्स इज़ एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। हाउ डिड सी गो टू स्पेस? सी फ्यू aboard the space shuttle Discovery on the STS-116 mission to the ISS. What does Earth look like from the space? Earth looks curved from space. Why did Sunita Williams come to India? Sunita Williams came to India to fulfill her friend's Kalpana Chawla's dream. सुनीता विलियम इंडिया क्यों आई थी? तो वो अपने फ्रेंड कल्पना चावला का जो ड्रीम था उसे पूरा करने के लिए इंडिया आई थी। ठीक है। वाई डू द थिंग्स वॉट वी थ्रो अप ऑन द अर्थ कम डाउन? बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। हाउ फार डिड सुनीता विलियम्स गो अवे फ्रॉम द अर्थ? 360 किलोमीटर। Describe how Sunita viewed the earth from the spaceship. Sunita describes the earth looks so beautiful and amazing. We could watch it for hours from the window of the spaceship. We could clearly see the curved space of the earth. What did Sunita want to become? Diver. What does she do now? She is an astronaut. What plans does she have for her future? She wants to become a school teacher. What is a globe? Globe is a model of the earth. Globe क्या है? एक मॉडल है अर्थ का। ये सारा क्वेश्चन आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में आएगा। ठीक है। Why did Sunita not have to comb her hair in space? Hairs float in space because of no gravity. हेयर क्या होता है? सुनीता विलियम्स स्पेस पे कॉम्ब क्यों नहीं करती थी? क्योंकि हेयर जो है ना वो फ्लॉट होता है। ठीक है, स्पेस में नो ग्रेविटी नहीं है इसीलिए। हाउ इज़ ईटिंग इन स्पेस डिफरेंट फ्रॉम ईटिंग ऑन अर्थ?
Food cannot be normally consumed in space. Everything starts floating if served on plates due to the absence of gravity. Hence, food is packed in sealed packet as thick paste. Explain. Explain what did Sunita Williams mean while saying, all the lines on the maps are made by us, they are in our minds. Sunita Williams wanted to state the fact of borders between countries and continents are just divided by political basis, not divided geographically by our mother nature. ठीक है. What is a shooting star? A shooting star is really a small piece of rock or dust that hits Earth's atmosphere from space. Name 2 festivals that are related with the moon. 2 फेस्टिवल के बारे में बताना है जो कि मून से रिलेटेड है. करवा चौथ, ठीक है, और गुरु पूर्णिमा. फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. अब इसमें देखिए क्या है कि सुनीता स्पेंट more than 10 months in space. 70% part of the globe is sea. Sunita was Kalpana's friend. Division of land masses on Earth into borders has been done by us. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. उसके बाद है Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. ठीक है. Look at the photographs given on page 102 of your book. अपने बुक के 102 पेज नंबर. ठीक है. अपना बुक जो है आपका, उसमें आप 102 पेज नंबर देखेंगे जिसमें फोटोग्राफ्स हैं. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन सुनीताज जर्नी टू स्पेस. और आपको कुछ सेंटेंस लिखना है सुनीता के जर्नी के बारे में, जो उन्होंने स्पेस में, जब वो स्पेस गई थी तो उसके बारे में आपको बताना है. ठीक है. तो ये आप खुद लिखेंगे. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. ग्लोब. ग्लोब किसे कहेंगे? ए स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ. स्पेस द एरिया आउटसाइड द अर्थ. स्पेसशिप ए स्पेस क्राफ्ट दैट carries people through space. Draw the pictures of sky. ठीक है. At daytime. अब देखिए आपको जो है ना, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ स्काई. स्काई का आपको पिक्चर ड्रॉ करना है. आप डे टाइम में अगर आप स्काई को देखते हैं तो किस तरह से दिखता है, उसका आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है. एट नाइट टाइम का, और ये दोनों आपको खुद बनाना है. ठीक है. बियॉन्ड द टेक्स्ट. फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज टर्म्स. इसका आपको मीनिंग निकालना है. ठीक है. एस्ट्रोनॉमी किसे कहेंगे? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एस्ट्रोनॉमर्स ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स एंड पोजिशंस ऑफ द सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स. प्लैनेट्स a celestial body moving in elliptical orbit around a star. ठीक है. इसके बाद है आपका सैटेलाइट. सैटेलाइट किसे कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट. कॉन्स्टिलेशंस ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ डिफिनाइट शेप. एस्ट्रोनॉट. ठीक है. एस्ट्रोनॉट ए प्रोफेशनल स्पेस ट्रैवलर इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. कॉस्मोनॉट एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस प्रोग्राम ऑफ रसिया और द फॉर्मर सोवियत यूनियन. ठीक है. तो ये आपका जो था डेफिनेशन था इसका, जो आपको याद करना है, एग्ज़ाम में आ सकता है. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स. अब इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम लिखना है. राइट 1 सेंटेंस ईच अबाउट देयर
अचीवमेंट्स, और आपको 1 सेंटेंस लिखना है इनके अचीवमेंट के बारे में भी, ठीक है। तो ये कौन है, इसके बारे में आप पता करके लिखेंगे कौन है, ये किसका पिक्चर है, और इसके अचीवमेंट के बारे में, ठीक है। सेकंड, इसका भी लिखना है आपको खुद, ये वाला भी और ये भी कौन है इसके बारे में लिखेंगे। यू हैव रीड अबाउट मैनी एडवेंचरस पीपल इन द लास्ट फ्यू चैप्टर्स। आपने बहुत सारे एडवेंचरस पीपल के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। व्हाट क्वालिटीज़ डू दीज पीपल हैव इन कॉमन, कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं जो पीपल में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद लिखना है, ठीक है। वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एवरी डे। हम लोग मून का डिफरेंट शेप देखते हैं, हर दिन हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग शेप होता है मून का, ठीक है। कभी घटता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर देखते हैं कि फिर वो घटता चला जाता है, ठीक है। ड्रॉ डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून इन द प्रॉपर प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर प्लेसेस पे यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पर दिया है कि फुल मून, तो यहाँ पर आपको फुल मून बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाफ मून है तो हाफ मून बना देना है। क्रिजेंट मून है, क्रिजेंट मून, और जीवस मून, ठीक है। यहाँ पे जेबस मून बनाना है, तो ये आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ऑन पूर्णिमा वी हैव फुल मून, वी सेलिब्रेट होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक जयंती ऑन पूर्णिमा, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ऑन अमावस्या वी हैव नो मून, अमावस्या में हम लोग मून नहीं देख पाते। वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन अमावस्या, अमावस्या में हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। डू यू नो अबाउट सम अदर फेस्टिवल्स विच आर रिलेटेड टू द मून, क्या आप जानते हैं कुछ अदर फेस्टिवल जो कि मून से रिलेटेड है, तो जैसे कि ईद, ठीक है, करवा चौथ। आवर सोलर सिस्टम हैड 9 प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो द 9th प्लैनेट इज़ नो मोर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब प्लूटो जो है ना वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रहा, क्यों, वाई, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सिमिलर intriguing worlds deeper in the distant Kuiper belt, icy Pluto was reclassified as a dwarf planet, ठीक है। इसे ड्राफ्ट प्लैनेट के रूप में बता दिया गया, ठीक है। अब देखिए, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम मैन मेड सैटेलाइट्स, तो आपको फाइंड करना है कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जिसका नाम, ठीक है। तो ये सारे सैटेलाइट का क्या नाम है ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है। आप इसे फाइंड करेंगे और इसका नाम क्या है वो आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वर्कबुक। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।